Thank you very much. Welcome on Learning Legends board. Today we are going to have a discussion on a personal development. Before I start a discussion, I would like to introduce our panelist. And number one is Miss Ushna Nehal. She is a corporate manager and trainer at Management Association of Pakistan with a demonstrated history of working with the professional training and education industry. She has a varied experience in the fields of marketing, corporate communication, customer services, sales, and HR. Ushna carries with her passion and positivity for developing people to excel their interpersonal and intrapersonal skills for achieving their aspiring goals. And she has been nominated from Pakistan for Tun Razak Youth Leadership Award held in Malaysia by Management Association of Pakistan as an emerging leader from Pakistan. Her core areas of learning and development are leadership, communication, marketing, sales, services, personal grooming and development, emotional intelligence, and interpersonal skills. She has done her MBA marketing and having an experience of working across the border. Now we have another wonderful man, Mr. Shehzad Khan. He is a human resource business partner and Searle Company Limited. Shehzad has been associated with the management and working as a thorough HR professional since past 10 years. He is associated with a leading pharmaceutical company in Pakistan, and he has gained extensive experience in both the public and private as well as listed manufacturing companies. It helps him to implement and apply the knowledge of HR and psychology and to develop and implement solution to meet business requirement. He has also done the MBA Human Resource Management, and he is also having another master's in organizational psychology and HRM, which has enhanced his skills and ability to understand and manage the behaviors of the people. Now we have another gentleman, Mr. Mujibur Rahman. He is Assistant Director, Institute of Business Administration, Community Colleges and Schools. He has worked in the concept of K-12 education, performing varied tasks related to the human resource management, administration, coordination, event management, training and development. So this is and we have another gentleman, Naseem Ahmad Tunio Saab. He is MBA Finance and currently doing his LLB, which is continued, and he's twice a Public Service Commission qualified and motivational speaker as well. And currently he's serving as an assistant collector in grade 1, he is also given a charge of Mukhtiar Kar and Public Service Commission 2030, and he is posted in the North Nazimabad district, central Karachi. So that was a brief introduction of our panelist. So definitely we will have some conversation today on the personal development, and unfortunately we are not having Mr. Subhan Saab, who is a wonderful person and again a great leader and corporate trainer. So starting our discussion today, I will definitely request Shehzad Saab to let us know a little bit about personal development. We want to know what is personal development. Personal development is all about. Thank you very much, Mansoor Saab, for the introduction. And I would like to extend my salam to all the participants. And जैसे आपने कहा कि what is personal development, I believe that the quality of our life, our relationship, our professional life, our personal life is very much dependent on our personal development. Um, and if I connect with consider that our life is full of problem issues, or if we see since last year जो pandemic आया है, everyone is in tense situation. एक anxiety है लोगों में, एक confusion है, एक खौफ है. So consider that these problem as a big ball in your life. Your personal development helps you to break these big balls. If you are not enough personally developed to meet all these challenges, then we cannot survive. और पर्सनल डेवलपमेंट की अहमियत मैं इस तरह भी कहूँगा कि when we enter into the professional life, we met with some unseen and unprepared challenges, and to meet those challenges we should be very good in personal development. अभी personal development है क्या? Personal development is all about knowing yourself, your personality, your unique personality traits, your strength, your weakness, your mindset, your objective, your goal, where you want to go.
ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर जो आप इसको स्टार्ट करें तो इट्स ऑल अबाउट नोइंग योर सेल्फ. हाउ डू यू नो योर सेल्फ, what इज़ योर पर्सनैलिटी. और हमने पढ़ा, हम जानते हैं साइकोलॉजी में भी हमने पढ़ा और हमारा मुशाहिदा भी है, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, यस इट्स अ कॉम्बिनेशन जो हमारी जीन्स में, हमारे डीएनए में, जेनेटिक्स के थ्रू आती है, बट हमारी जो पर्सनैलिटी है होती है, ये हमारी लाइफ के अर्ली ईयर्स में फॉर्म हो जाती है. इट्स इंक्लूड आवर इन्वायरमेंट, आवर एजुकेशन, आवर एक्सपीरियंसेस, and all these three things combines and influence our personality, and that's how our personality has been formed. And again, we take this personality to our school, to our college, to our institution, to our workplace, and in our personal life. So personal development is all about knowing yourself, your strength, your weakness, your ambitions, and how you are working toward that. That is all from my side. Okay, that's wonderful. You have comprehended very well. So, since you are working in a manufacturing concern, one of the leading manufacturing company in the Pakistan, so how do you see कि वहाँ पे employees की जो personal development है वो कितनी importance रखती है in the eyes of organization? जी, जैसे अभी आपने देखा हो थोड़ी देर पहले मिस उंशा से बात हो रही थी एंड वी वर डिस्कसिंग, शी वाज डिस्कसिंग माय पास्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड आस्किंग अबाउट माय करंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई वाज कमेंटिंग दैट बोथ ऑर्गेनाइजेशन गॉट अ वेरी गुड कल्चर. The culture has been formed by people together. Uh, Professional development is a continuous part of the organization, but थोड़ा यहाँ पे मैं कहूँगा unfortunately the quality of education is मैं बहुत बड़ा एक comment दे रहा हूँ, is not that up to that mark to meet all those challenges. So that's why organization has to pay a lot of amount, a lot of time and energy on the development of its people. और जो एकेडेमिया है, एकेडेमिया इज जो मेन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डू एग्री, दे हैव टू फोकस ऑन द थियोरेटिकल साइड, on building the foundation, the theoretical foundation of the student in different subjects, so that they are prepared, so they can understand the concept, the theories and logics. But I think academia are not paying too much time on the career and personality development of those students. So that's why that responsibility has to be taken by the organization. So yes, we have to pay a lot of time and energy, and organization are paying huge sums. To some extent, it is a requirement also, because let's say if organization is taking a new technology, so they have to train the people. But I'm talking about personality development, the soft side of your personality. For example, your attitude, your personality, your behavior, your approach. These are the something key traits which form in our formative years of our life. So this is a challenge I think we are facing. और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि attitude and your personality play a very important role in your success. Yes, your technical skills, your hardcore skills play also a very important role. But if you are not good enough in your personal development, then you are unable to meet the challenges in a very effective and smooth way. And if you are not meeting those challenges in a smooth way, then definitely the problem will arise. And in some cases, the organization is also suffer because they are not meeting their objective. And yes, that individual is also suffer, or there is a dent in or his or her career. So this is how the importance of personal development is too much. And I think we as a corporate sector are doing thing, and academia should also work out on that. All right, all right. So since you are working in a manufacturing, I will definitely draw attention of Ms. Ushna, because she has been associated with the Management Association of Pakistan, dealing with a lot of people and clients and the corporate sector. So Ushna, how do you see that when you are interacting with the corporate sector? I would definitely try to learn about your own experience. What kind of personality development aspects have really contributed in your successful professional growth? See, if I talk about connecting with professional people, so I think yes, we have couple of, in fact, many of people who are there who have developed themselves and groomed themselves in aspects of professional development and personal development. उसमें सबसे पहली चीज जो मैं बात करूँगी, that is emotional intelligence, which comes in, and उसके बाद आपकी communication skills. जहाँ शहजाद बात कर रहे थे कि हमारी अपनी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है to enhance our career, our growth. उसमें कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम अपने करिकुलम में सीख के जरूर आते हैं, बट वी हैव टू लर्न देम बाय विद इन द टाइम, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस इज वन थिंग. हम अपने करिकुलम में इस चीज की बात नहीं कर रहे होते. हम कम्युनिकेशन स्किल जरूर पढ़ाते हैं, बट हाउ इट इज बीन यूज्ड इन द प्रोफेशनल लाइफ, इट्स नॉट टॉट. सो वो चीज हमारे जब हम
मैं देखती हूँ हमारे पास नए बच्चे आते हैं, इंटर्न्स आते हैं, वहाँ मिसिंग होती है. बट व्हेन आई सी द कॉर्पोरेट पीपल, ऑफ कोर्स दे हैव डेवलप्ड देमसेल्फ, और कंपनीज आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन दैट. बीइंग इन अ ट्रेनिंग इंडस्ट्री, आई सी कि हर कंपनी का एक मेजर बजट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट होता है और उसमें उसके ऊपर काम किया जाता है. सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज वन थिंग जिसमें आपकी अपनी इमोशनल एबिलिटी को हम टारगेट करते हैं, जहाँ पे लोग कहते हैं कि IQ इज द वन विच मेक्स यू सक्सेसफुल इन योर करियर. इट्स नॉट दैट ट्रू. हमने इसको इन्वेस्टिगेट इस तरह से किया कि जब हमने देयर इज अ सर्वे बीइंग डन, और वहाँ पे ये देखा गया कि people having 80% level of their IQ doesn't survive much better in the industry because they were lacking in the emotional intelligence skills. So वो जो हमारी एक स्किल है जिसको हम समझते हैं कि दिस इज समथिंग अ पार्ट ऑफ लाइफ, हम अपने बिहेवियर्स, अपने ट्रेड्स को लेके आगे चल रहे होते हैं, एंड वी सी कि ओके दिस इज समथिंग डेली बेसिस पे हम डील कर रहे हैं. एंगर मैनेजमेंट को हम नहीं अपने करिकुलम में इंक्लूड करते, या हम अपने लाइफस्टाइल में उसको नहीं इंक्लूड करते, तो वो चीजें हमारे लेटर ऑन लाइफ में हमारे डिसीजन में बड़ी इम्पैक्ट करती हैं. बीइंग अ मैनेजर, आई हैव सीन कि इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल है. सिमिलरली कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल है. इमोशनल इंटेलिजेंस की तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूं. जैसे फॉर एग्जांपल, बीइंग अ मैनेजर, हमारे पास टीम होती है, इसके साथ हम काम कर रहे होते हैं, और सेल्स के पर्सन, मार्केटिंग पीपल, जब वो मार्केट में जाते हैं, उनके पर एक टारगेट्स होते हैं, वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, जब वो सेल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है. जब हम सर्विस इंडस्ट्री में बात करते हैं तो पीपल आस्क यू अबाउट व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग. उसमें आपकी since you are a brand, you are coming up with the being a sales person, आप एक कंपनी को लेके अपने साथ जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है कि आप खुद क्या प्रेजेंट कर रहे हैं सबसे पहले. सो वहाँ पे हमारी ये सारी स्किल्स जो हैं वो पर्सनल डेवलपमेंट की वो इंक्लूड होती हैं. मैं आपसे बात कर रही हूँ मंसूर साहब, तो मैं एज अ मैप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. तो आप पहले मुझे जानते हैं रादर देन मैप को. सो दैट मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बिकॉज जब मार्केटिंग के, सेल्स के लोग आगे जाते हैं तो वो ये चीज पहले देखते हैं कि कस्टमर को हम क्या दे रहे हैं, हम एज अ ब्रांड कस्टमर को क्या दे रहे हैं. तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स, उनकी इंट्रापर्सनल स्किल्स बहुत मैटर करती हैं कि अपने ब्रांड को बनाने के लिए, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए. दैट इज समथिंग आई डू इंक्लूड दैट. All right. That's wonderful part. अब देखिए, like I would definitely agree with that. Now we have different sectors altogether. For example, we have some manufacturing area, we have some services area like MEP, and we have a government sector जिसमें नसीम साहब को मैं ज़हमत दूंगा. I mean, we have a different and varied approaches. So, Naseem Saab, if you are hearing me, so you have, listened the different context and perspective of individuals. So, how do you see, sir, आप कैसे समझते हैं कि government के जो institution में है, how do government actually work on the personal development, and what is the actually importance of that personal development in the government sector as well? The perception, keeping in view the perception we have normally about the government institution. Assalamu alaikum to all of you. Actually, what we lack in Pakistan, that is personal development. हमारा सारा फोकस होता है, हमारे इंस्टीट्यूशंस हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, गवर्नमेंट जॉब हो, हमारा सारा फोकस होता है सिर्फ एजुकेशन पे. दैट इज़ ट्रेडिशनल एजुकेशन. हम पढ़ लिख के एक बड़ी अच्छी सी डिग्री तो ले लेते हैं, पर हमारे मुआशरे में जब हम उठते हैं, बैठते हैं, तो लोग हमें एक अजीब सा टर्म देते हैं, दैट दे कॉल अस पढ़ा लिखा जाहिल. तो ये हमारे पास तब चीज़ आती है जब हमारे पास डिग्री होती है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती है. हमें क्या करना है, द वे वी टॉक, द वे वी वॉक, द वे वी लिसन, द वे वी हैंडशेक एंड द वे वी डील विद पीपल, दीज ऑल थिंग्स मैटर अ लॉट. जब तक हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ आवर बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ आवर एटीट्यूड, जब तक हम इस चीज़ को डेवलप नहीं करेंगे तो हम एक सक्सेसफुल पर्सन्स नहीं बन सकते. जहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर की बात है, तो पहले तो इस तरह से होता था कि गवर्नमेंट, चाहे वो कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट पे कोई फोकस नहीं दिया जाता था.
जस्ट ट्रेडिशनल ट्रेनिंग्स कराई जाती थी। जिस तरह हमारे सिंध गवर्नमेंट के पास नीपा पे एक एकेडमी है, सिंध सिविल सर्विसेज एकेडमी, तो वहाँ पे सिर्फ मतलब जैसे कि मैं मुख्तियार कर हूँ फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कलेक्टर, तो हमें सिर्फ रेवेन्यू सिखाया जाता था ना, हमें ये ना सिखाया जाता था कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करें, आप उठें बैठें कैसे, आप लोगों से किस तरह इंटरेक्ट करें। पर जो जो ये दुनिया तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, हमें एक सक्सेसफुल ब्यूरोक्रेट होने के लिए पर्सनल डेवलपमेंट के स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे काम कर रही है। अब हमारी एकेडमी जो है सिंध सिविल सर्विसेज एकेडमी, वहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट पे लेक्चर्स होते हैं। तो जब तक पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती, यही बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, हमें पूरा दिन पब्लिक से डील करना होता है, लोगों के मसाइल को देखना होता है। सबसे बड़ा हमारे पास मसला होता है पब्लिक डीलिंग। हर कोई बंदा आता है इस मूड में, इस परेशानी में, कि वो चाहता है कि मिनट्स में मेरा काम हो जाए और जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह से मेरा काम हो जाए। पॉलिसी कोई भी फॉलो नहीं करना चाहता। अब उस लेवल पे हमारी पर्सनल डेवलपमेंट काम आती है। अगर हम वेल डेवलप हैं, हमें टैक्स आते हैं लोगों को डील करना, तो हम उन्हें इजीली कन्विंस कर सकते हैं कि रूल को फॉलो किया जाए। अदरवाइज अगर इस तरह से नहीं होता है तो फिर सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, फिर वो क्लिप्स आ जाती हैं कि फलां ऑफिसर ने ये डील किया, फलां ऑफिसर ने ये इस तरह से मिसबिहेव किया। तो ये चीज़ें हमारे मुआशरे को तबाह कर रही होती हैं। तो पर्सनल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए। हम ब्यूरोक्रेट भी बन जाएंगे सक्सेसफुल, हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी बन जाएंगे, सक्सेसफुल कोई बिजनेस मैनेजर भी बन जाएंगे, पर एक सक्सेसफुल इंसान बनना, उसके लिए इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। दैट्स वंडरफुल। आपने बड़ा एक नया एंगल निकाला है। वन ऑफ द की थीम ऑफ दैट कि आपको यू हैव टू बी गुड ह्यूमन बीइंग, फॉर दैट रीजन यू मस्ट फोकस ऑन इट। सर थोड़ा सा मैं आपको मजीद इफ यू अलाउ मी, मैं थोड़ा सा मालूम करना चाह रहा हूँ कि लाइक गवर्नमेंट इज नॉट इनफैक्ट इज टेकिंग मेनी इनिशिएटिव रिगार्डिंग द पर्सनल डेवलपमेंट एंड ऑल दैट, एंड दिस इज अ रीजन कि हमें आप जैसे यंग और एनर्जेटिक लोग नजर आ रहे हैं अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। सो डू यू बिलीव कि जो आपका लाइक पब्लिक डीलिंग का जो पोर्शन है, जो एरिया है, वो which is that is a much more complex than the corporate sector, because they have some educated employee, well mannered and all, but you have different people altogether where you need to deal across the board. So how do you feel about it? I completely agree with you. There is a big difference between corporate sector and government sector. मेरा खुद अलाइड बैंक का बैंकिंग का एक्सपीरियंस है 7 साल का, और 5 साल में ब्रांच मैनेजर रहा था अलाइड बैंक में हैदराबाद रीजन में। तो वहाँ पे जो लोग आते हैं ना, एक परसेप्शन होता है लोगों का ना, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में आते हैं बड़े महज़्ज़ब तरीके से लोग आते हैं ना, कि भाई सामने ब्रांच मैनेजर बैठा हुआ है, एक महज़्ज़ब तरीके से आते हैं। उनको अगर कोई शिकायत भी होती है, वो इतने महज़्ज़ब तरीके से पेश करते हैं कि दैट कैन बी टैकल्ड वेरी इजीली। पर जहाँ तक हमारा गवर्नमेंट सेक्टर का प्रॉब्लम है, वहाँ पे लोगों की एक साइकी डेवलप हुई है कि मतलब वहाँ पे मेरा जो काम नहीं होगा, जो किसी काम में मेरी हिंड्रेंस आएगी, तो लोग उसको ब्राइबरी समझते हैं। लोग समझते हैं ये सिर्फ करप्शन की वजह से नहीं होता मेरा काम। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट में भी पॉलिसीज हैं, एक वे आउट है, एक एसओपीज डेवलप की हुई है। उन्हीं एसओपीज के तहत उन कानून को फॉलो करते हुए हमें काम करना पड़ता है। फिर हमारे पास ज़्यादा एक ट्रेडिशनल डेवलपमेंट ये हुई है कि लोगों का मतलब आपका फॉर एग्जांपल कोई काम है, उसमें कोई कानूनी मतलब ऊंच नीच है, तो वो 4 पैसे देके वो काम करा लेते। फिर जहाँ पे एक ऑनेस्ट ऑफिसर बैठा हुआ होता है, उसके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि वो अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है किसी फाइल पे, तो उस पे ये एलिगेशन आ जाता है कि ही वांट्स अ हाई अमाउंट ऑफ मनी, ये ज़्यादा पैसा लेना चाह रहा है। तो इस तरह से फिर हमें लोगों को बताना पड़ता है, उनको कंप्लीटली एक मतलब डेवलप करनी पड़ती है उनके माइंड में बात कि भाई हर जगह पे हर लोग इस तरह के नहीं होते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आप लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करो, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करो, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बड़ा मसला होता है कि खुद को प्रूफ करना पड़ता है सबसे पहले कि आपने जो ऑब्जेक्शन रेज किया है दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ, नॉट अकॉर्डिंग टू अदर एनी डेवलपमेंट। ये Absolutely. प्रॉब्लम, ये डिफरेंस है।
एब्सोल्युटली सर, मैं अब थोड़ा सा जहमत देना चाहूंगा मुजीब साहब को। मुजीब साहब, इफ यू आर हियरिंग मी। जी मुजीब साहब, एक्चुअली हम मुख्तलिफ Yes, yes, पर्सपेक्टिव sir. मैं मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव को हम कोशिश करें आइडेंटिफाई करने के लिए, because you are from the academics, and Sakkar IBA University indeed is one of the leading and Pakistan level university. वहाँ पे काफी फोकस हो रहा है एजुकेशन का. We heard a lot of things about it. So how would you say कि किस तरीके से आप देख रहे हैं within the institution, because you have got a great experience in your own field. So how do you see the people, the industry representative that they just spoke about कि किस तरीके से उसकी इम्पोर्टेंस है? How do you see कि वहाँ पे कितना काम हो रहा है यूनिवर्सिटीज के अंदर किसी पर्सनालिटी, स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे या पर्सनल डेवलपमेंट पे? Thank you so much, first of all. Yes, let me explain. The Sakkar University has been striving, directly on improving and developing the personal and professional skills of people, especially of their, faculty staff. What happens, first of all, Sakkar University goes for the need analysis, okay? It wants to know what are the levels of their faculty, what are the needs of their faculty, and then it plans for the professional development and personal development of, faculty. And let me tell you that we focus mostly on the 12 skills, 21st century skills of faculty, which are divided into 3 L's, like learning skills, like literacy skills, and life skills, which are again categorized into major categories, like which include main categories like critical thinking, communication, collaboration, and creativity. So along with that, there are many options for the faculty if they wish to go for, and these are generally marked in a particular sessions like summer professional development programs, like winter professional development programs, online, face-to-face, from third parties, from international forums, and from the, Oxford University Press, from British Council, and many programs are there. But the main purpose of these programs is to build the capacity of their faculty members. Either these are in-house sessions or they are, taken from the outside of their university. So these are the major categories. Aside from this, Sakkar IB University focuses to mainly address the skills that you can see and the skills that you can't see, like tangible and intangible skills. Mostly, and along with it, we deal with the contextual skills, because if you want to ensure and maintain quality, it comes from the context that you are dealing with. It is very much, attentive area in Sakkar IB University. And let me tell you, what we see is mostly just to your, life skills, like social skills, like your health, your well-being, the security and safety, and these all the things are included in the skills. And what you can't see are actually, spiritual skills, what you call soft skills. Sakkar IB University also provides continuous professional development to their staff and faculty related to these. And mainly we focus on values education. Like we teach staff mostly like how to behave with their customers and how to deal with the serious problems, how to be diplomatic, which is also a 21st century skill. So in this way, I would say Sakkar IB University leaves no stone unturned and dealing with building the capacity of their employees, either in Sakkar IB University or in campuses or community colleges. The same process is repeated, but on the whole, it is to ensure the well-being of employees. Okay, sir, that's wonderful. You briefed a lot about it, that Sakkar IB is working on it. एक थोड़ा सा precisely मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने मुख्तलिफ like हमारे प्रोफेशनल लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू सुना कि उनकी ऑब्जर्वेशन, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ये समझते हैं द कैंडिडेट्स दे आर कमिंग फ्रॉम द कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस, they are lacking in certain skills which are very much essential to groom someone to be a good and a productive employee of the company, which includes जिसमें communication है, आपकी personality है, आपकी
dressing है, your attitude and behavior. So specifically talking about the student perspective, कि आप क्या समझते हैं कि हमारे जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स का, उस पे कितनी तवज्जो दी जा रही है? हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड दैट ओके यू आर गोइंग विद द पेस, you are trying to chase up with the industry requirement with respect to the attitude and the professional skill development? Sir Mujib sir. Mansoor sir, very good question. Of course, Sakhara University is working thoroughly on the skills of the students. Either these are technical skills or the skills which are going to be required by them while during their job seeking. What happens in Sakhara University from the starting, all the assignments are linked with the skills of students that are going to help them in the industry. What I mean to say, Sakhara University already has a plan to link the skills of academia with the industry. How it is done, let me explain. Suppose whatever assignments we get, they are incorporated with the skills like computer skills, like digital competence, and like technical skills. These all are included in the assignment. These all are aligned with the assignment. Either assignments are in the form of writing, either the assignments are in the form of acting, in performance, in presentation, in whatever outcomes, whatever performance. These all are linked with the industry. So in that way, I would say Sakhara University has a thorough plan to deal with the skills which are required by the industry, especially in 21st century, including critical thinking, flexibility, values education, creativity, innovation, and much more. So this is from Sakhara University. All right, that's wonderful. Shehzad Saab, if you are hearing us, Shehzad Saab, actually personal development in my point of view is a lifelong process. All right, so what is a specific point of time would you suggest कि जहां पे इंसान को खुद अपने ऊपर एक काम करना चाहिए with respect to the personal development? I am asking to when you should realize, जिस तरह एक होता है ना कि शादी की उम्र होती है, एहसास होता है हम अब शादी करनी है, तो how when this is I want to ask a point of time when a person should start working, how would you say about it? जी, आपने इवेंट का जिक्र किया शादी का, आई थिंक उससे पहले तो कर लेनी चाहिए वरना फंस जाएंगे. You will be in tough time. नहीं, ये तो ऑन लाइटर नोट था, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा. पर्सनल डेवलपमेंट इज नॉट एन इवेंट, इज नॉट ओनली फॉर 1 week और 1 year. इट्स अ कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. व्हाई? क्या ये मैं आपको बता दूं कब एंड हो जाएगा? एंड तब हो जाएगा जब आप ये कहें मेरी लाइफ एंड हो जाएगी. इफ यू नो कि मेरे पास प्रॉब्लम इस उम्र में आके खत्म हो जाएंगी. इफ यू बिलीव कि मंसूर साहब ये कहते हैं जी मैं जब 40 years का होऊंगा, 30 years का होऊंगा, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी. सही है, फिर इट्स मीन आपको पता लग गया आपकी प्रॉब्लम कब खत्म होनी है. नाउ यू डोंट नीड टू डेवलप योरसेल्फ बिकॉज प्रॉब्लम आर कमिंग ऑन डेली बेसिस. जैसे हमने कहा कोरोना आया, पैंडेमिक आया, द होल वर्ल्ड इज जॉल्टेड. सो व्हाट? अब देखें यहाँ पे जरूरत थोड़ी देर पहले मैं इस बात से पहले एक बात को कनेक्ट करूंगा. नसीम साहब ने एक बात कही थी, कुछ वर्ड कहे थे. उन्होंने कहा था कि हम पढ़ा तो रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक टर्म यूज की, पढ़े लिखे जाहिल. और ये बड़ी कॉमन टर्म है. नाउ व्हाट इज व्हाई दिस टर्म इज यूजिंग सर? इसकी बुनियादी वजह ये है कि एजुकेशन, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा शायद यहाँ पे हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लोग हैं, मैं किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट इन ओवरऑल, कि एजुकेशनल सेक्टर भी बहुत कमर्शलाइजेशन पे चला गया है. They have to definitely run their business, they have to pay their expenses, तो definitely वो उन्हें कुछ ना कुछ अर्न करना है. लेकिन I believe उसके साथ जो नसीम साहब ने कहा, हमारी एजुकेशन के अंदर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं है. Values are missing from an educational setup, not only from educational setup but also from the society. So that's why we are facing such kind of challenges. I would like to refer एक किताब है बड़ी जबरदस्त शेफ खेरा की, You Can Win. उस बुक में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने एक कोट दिया है, मुझे एग्जैक्ट वो वर्ड याद नहीं है कोट उनका, लेकिन मैंने उस बुक को पढ़ा था, मैं रिकॉल करता हूँ. उन्होंने कहा था विदाउट गिविंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जहाँ पे वैल्यू मिसिंग है, द एकेडमिया और यूनिवर्सिटी आर प्रोड्यूसिंग बारबेरियंस. अब बारबेरियंस कौन से आप समझ सकते हैं, जंगजू थे. तो हेयर द वैल्यूज आर मिसिंग, और ये वैल्यूज हमारी सोसाइटी से भी अब मिस होती जा रही हैं. हम हमारे जो अब आप ये सोशल सेटअप जो हमारे अब हिल रहे हैं, तो उस हवाले से
वो इंडिविजुअल वो प्रॉब्लम लेके अपनी वर्क प्लेस पे भी आ रहा है और अपनी लाइफ में भी कैरी कर रहेगा। थोड़ी देर पहले मैं सुषमा ने एक टर्म यूज की, इमोशन इंटेलिजेंस की। देखिए 70s में 60s में आप जाएंगे तो कहा जाता था जिस बच्चे का IQ अच्छा है दैट बंदा विल बी, वो इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर, फौजी बन जाएगा। लेकिन सर अब नाउ डैनियल गोलमैन की जो किताब है 1995-98 के अंदर आई है, व्हाई EQ मैटर मोस्ट, और जिसमें उन्होंने कंपेयर किया है व्हाई EQ इज मोर इम्पोर्टेंट देन IQ। सर 80% मैंने अपने करियर के अंदर लोगों को, बहुत काबिल लोगों को देखा है कि वो अच्छे टेक्निकली मेडिकल प्रोफेशनल के अंदर और बिजनेस डिग्री के साथ, बट दे हैव नॉट सर्वाइव इन देयर करियर। व्हाई? Because they got some very good technical respectable degree, but why they are lacking in emotional intelligence, they are unable to carry themselves, उनमें self awareness की कमी थी, वो अपने आप को कैरी नहीं कर सके, वो प्रॉब्लम वो टीम मैनेजमेंट नहीं कर सके, and now they are out of the business। तो here your soft skill, your personality count a lot। अब आपने जो सवाल कहा था, मैं उसकी तरफ आता हूँ कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेसर, और ये कब स्टार्ट होना चाहिए? आई बिलीव ये हमें बचपन से स्टार्ट करने देना चाहिए। साइकोलॉजी कहती है 5 से 6 साल की उम्र में हमारा माइंड डेवलप हो जाता है। हम यहाँ के आगे समझते हैं जब मैं 18-20 साल का हूँ तब मैं ये चीज़ सीखूंगा। नहीं जी, आज पेरेंट्स को भी काम करना है। अब देखिए पेरेंट्स हमारे, अगेन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है आपको पता है। यहाँ पे आई बिलीव द रोल ऑफ टीचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो एक बच्चा जो 5 साल, 6 साल, 7 साल का आ रहा है, एक टीचर से हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो ऐसा ना हो जो अगेन फिर हमारे सोशल सेटअप पे आए, हमारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम पे आए। जो कुछ नहीं बनता वो क्या बन जाता है? टीचर। तो वो तो बेचारा मजबूरी में अपने खर्चे निकालने के लिए जॉब कर रहा है, तो उसकी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है, खुद की आगाही नहीं है, तो हाउ कैन, अब वो उस्ताद ही नहीं रहे तो कैसे डेवलप बनेगा? तो आई बिलीव ये छोटी उम्र से स्टार्ट हो जाना चाहिए काम। आपकी जीन के अंदर कुछ चीजें आ जाती हैं, लेकिन आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। हाउ? व्हेन यू वर्क ऑन योर थॉट प्रोसेस। इसमें जो यहाँ पे हमारे एजुकेशन से भी लोग हैं, मैं उनको रेफर करना चाहूंगा। जैसे अभी हमारे मुजीब साहब ने बहुत जिक्र किया, दे आर वर्किंग टू मच ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स और स्टूडेंट के लिए भी। एक बड़ी जबरदस्त किताब है माइंडसेट, कैरल ड्वेक है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट, उनकी टेड टॉक भी बड़ी मशहूर है और किताब आई थिंक हमें लेनी चाहिए। उसमें उन्होंने जिक्र किया देयर आर 2 काइंड ऑफ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट। एकेडेमिया को यहाँ पे लोगों की या स्टूडेंट की स्किल एनहांसमेंट के लिए उनके माइंडसेट पे काम करना चाहिए। देखिए ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे कौन होते हैं, और ये होता भी है बाय बिल्ट इन भी आता है फैमिली के अंदर। वो बच्चा जब उसको चैलेंजिंग कोई काम दिया जाता है, प्रॉब्लम दी जाती है, तो वो कहते हैं नहीं यार इट्स टफ, हम नहीं कर सकते। ये फिक्स माइंडसेट वाले स्टूडेंट होते हैं। नाउ द ग्रोथ माइंडसेट वाले कौन स्टूडेंट होते हैं? वो कहते हैं इट्स अ चैलेंजिंग, नाउ लेट्स एक्सप्लोर इट, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हेयर आप अपनी सोच को चेंज करते हैं। व्हेन यू चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस, योर थॉट प्रोसेस, देन योर एक्शन एंड बिहेवियर सडनली चेंज। अब आपने जो कहा ये किस एज पे होना चाहिए? सर अगरचे आज आपको 40 साल की उम्र में बात पता लग रही है तो प्लीज वर्कआउट ऑन योर थॉट प्रोसेस। अगरचे बात आपको 10 साल की उम्र में पता लग रही है तो आप 10 साल में काम इस पे शुरू कर दें। एंड आई बिलीव हमारे एजुकेशनल सेटअप के अंदर टेक्निकल स्किल्स का जो बहुत जोर है, आप मेडिसिन पढ़ाइए, आप अकाउंटिंग पढ़ाइए, आप HR पढ़ाइए, कम्युनिकेशन पढ़ाइए, लेकिन उसके साथ साथ आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी पढ़ाइए। आप उसको ये बताइए बेटा तुम्हारा एटीट्यूड बनेगा कैसे, बिकॉज इफ योर एटीट्यूड इज नॉट पॉजिटिव यू कीप ऑन सफरिंग। It is not your skills which can take you at the top, it is your attitude which can take you at your top। और ये हमें लर्निंग स्किल जो आपने कहा, अगेन मुझे भी और आपको भी, हम सबको, और हमें अपनी जनरेशन के लिए भी जो काम करना है, नंबर 1 लर्निंग स्किल्स। जो लोग अगेन मैं वो बड़ा अच्छा एक उन्हीं कैरल ड्वेक की किताब है, उसमें उन्होंने एक कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट से, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उन्होंने रेफर किया था, आई डोंट डिवाइड द वर्ल्ड बिटवीन द पुअर एंड रिच or between haves and have-nots, I divide the world between those who are learner and who are not learner। तो if you are a learner, if you are curious, जो स्टीव जॉब भी कहता है, तो आप देखें आपकी लाइफ के अंदर भी आपको मजा आएगा, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, अच्छा पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, आपकी खुद से अपनी सेल्फ अवेयरनेस अच्छी होगी तो यू विल बी फील हैप्पी एंड रिलैक्स, और फिर आपकी इंटरेक्शन भी अच्छी होगी, फिर आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी, आपके लिंक्स भी अच्छे होंगे, और आप खुद को पॉजिटिव चीजें भी आपको नजर आएंगी। तो आपकी बात का जवाब ये है, जिस दिन आपको पता लग जाए मेरे अंदर ये वीकनेस है सर, उसी दिन से आप इस पे अपने इंप्रूवमेंट में काम करना शुरू कर दें। ओके, ऑलराइट। नसीम साहब, आपसे मैं मालूम करना चाहूंगा, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हमने ये फील किया है, हमने ये देखा है, नॉर्मली होता ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जिस तरह माशाल्लाह आप पब्लिक सर्विस कमीशन होल्डर है, हमने ये फील किया, एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, उसमें आप डिसएग्री जरूर कर सकते हैं, कि जो बंदा कमीशन ऑफिसर एक मर्तबा बन जाता है, उसको एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है, मुख्तियार कार कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर बन जाता है,
तो वो शायद पीछे की तरफ फिर मुड़ के नहीं देखता कि भाई हाँ मैं तो अब सेटल्ड हूँ, तो नाउ लाइफ इज माइन एंड आई विल नीड टू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। तो डोंट यू थिंक कि ये हमारे यहाँ गवर्नमेंट में जो कल्चर है, जो कल्चर ऑफ सीट है, कल्चर ऑफ पावर है, कल्चर ऑफ रेस्ट है, कल्चर ऑफ कंफर्ट है, ये कब चेंज होगा? हाउ डू यू सी, इज देयर एनी होप सर? हम कुछ उम्मीद लगाए? वैसे तो तब्दीलियां काफी आ चुकी हैं, तो कैन वी एक्सपेक्ट एनी चेंज इन दैट एरिया? मंसूर साहब, आई डू एग्री विथ यू 100%, 110% कि हमारे पास यही कल्चर है। एक मर्तबा आपने कमीशन पास कर ली, एक सीट पे आ गए, देन योर लाइफ स्टार्ट फ्रॉम हियर। और हमारी मतलब खुद की थिंकिंग भी यही होती है जनरली, जब हम पढ़ रहे होते हैं कि वंस आई हैव टू बिकम असिस्टेंट कमिश्नर CSP, देन माय लाइफ विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। पढ़ते वक्त हम जिंदगी में कुछ नहीं करते, न खेलते हैं, न घूमते हैं, न दोस्त बनाते हैं, न एंजॉय करते हैं। सारी चीजें हम पेंडिंग रखते हैं कि हम सीट पे आ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट अवर लाइफ। तो ये आई माइंड थिंक सेट चेंज होना चाहिए, एग्रीड, क्योंकि हमें कोई टास्क दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो दैट इज बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी ओवर अवर शोल्डर्स। हमें लेवल देखेंगे कि हमें पब्लिक को सर्व करने के लिए ये टास्क दी गई है, ये पोस्ट दी गई है, देन वी विल ट्रूली बिकम अ पब्लिक सर्वेंट। अभी जिस तरह आपने बात की कि हम ये कब एक्सपेक्ट करें कि ये माइंडसेट चेंज होगा, हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में ये होता है कि सिंपली अब कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो मैं यूज भी नहीं कर सकता ना यहाँ पे। जनरली आपको बता रहा हूँ कि ऑल आर इक्वल। मैं फॉर एग्जांपल 2019 में अपॉइंट हो गया एज अ मुख्तियार का, तो मेरी सीनियरिटी जहाँ पे बिलोंग करती है उसी सीनियरिटी पे मैं आगे चलता जाऊंगा। whether I have developed myself or not, whether I have served the public at grassroots level or not, these things do not matter. मेरी जो ACR बनाता है, मेरा असिस्टेंट कमिश्नर एंड डिप्टी कमिश्नर, मेरे उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, 3 मेरी ACR अच्छी बन गई, आई विल बी प्रोमोटेड एज असिस्टेंट कमिश्नर। तो मैंने क्या किया, किस पोस्टिंग पे कितना सर्व किया, कहाँ पे मेरे पास मेरे अगेंस्ट पे कौन से एलिगेशंस थे, कहाँ पे मैं करप्शन में इन्वॉल्व था, ये सारी चीजें कोई नहीं देखता। जस्ट ACR देखेंगे, प्रमोट कर देंगे। अब जैसे फेडरल गवर्नमेंट में डॉक्टर इशरत हुसैन को चुना है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे, तो वो इस चीज पे काम कर रहे हैं। उन्होंने सजेस्ट की हैं काफी चीजें, उसमें सबसे बेहतरीन चीज ये है जिससे मैं भी एग्री करता हूँ कि सिविल सर्वेंट जो है उसका प्रमोशन सिर्फ उसकी सीनियरिटी पे बिलोंग ना करता हो, उसकी परफॉर्मेंस इवोल्यूशन पे डिपेंड करता हो। अगरचे वो परफॉर्म करता है तो वही प्रमोट होना चाहिए। जिस तरह हम जुडिशरी में आएंगे, सीनियर जजेस रह जाते हैं, जूनियर मोस्ट जजेस चीफ जस्टिस बन जाते हैं, इसी तरह हमारे आर्म्ड फोर्सेस में है। हर जगह पे अगर कंपटीशन है तो व्हाई नॉट इन सिविल ब्यूरोक्रेसी? सिविल ब्यूरोक्रेसी में हम सब एक जैसे हैं, एक ही लाइन में, एक ही सिफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। फिर इस तरह जब होता है तो अगर मुझे पता है कि मैं घर पे बैठा हुआ हूँ और मैं कोई काम नहीं कर रहा, कोई सर्विस डिलीवरी नहीं है, कोई पब्लिक की खिदमत नहीं कर रहा, पोस्ट सुबह को सोया हुआ होता हूँ, 12 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ, 5 बजे घर आ जाता हूँ, मुझे पता है कि 5 साल बाद मेरी जो सीनियरिटी ऊपर जाएगी, 5 साल बाद मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन जाऊंगा, तो मेरे पेट में क्या दर्द है कि मैं जाके मखलूक खुदा की खिदमत करूं? मुझे कोई दर्द नहीं है, मैं घर सोया रहूंगा, मैं अपने टाइम पे प्रमोशन लूंगा। जब हम इसको परफॉर्मेंस बेस्ड बनाएंगे फिर मैं कंपटीशन में आऊंगा। इसी तरह जब मैं बैंकिंग में था, मैं 2011 में MTO बना था, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर अलाइड बैंक में, तो वहां पे एक कंपटीशन था। मुझे ब्रांच मैनेजर बनने का बड़ा शौक था ना, तो उसके लिए मैं सीनियर से पूछता रहता था, मैं मुझे कौन से स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, किस फील्ड में ज्यादा मुझे फोकस करना चाहिए कि मैं इजीली बन जाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 and 5 years मैं अपनी बैच 46 MMTO से ऑल ओवर सिंध एंड बलोचिस्तान, तो उसमें मैं फर्स्ट था जो मैं ब्रांच मैनेजर बना था 28 साल की उम्र में। तो वहां पे मैंने वो स्किल्स डेवलप किए। यहाँ पे आके मैं पूछता हूँ कि भाई मुझे कौन से स्किल्स डेवलप करने चाहिए जो मेरा प्रमोशन हो जाए, तो वो कहते हैं भाई तुम्हें कोई स्किल्स नहीं बट पर्सनल स्किल्स डेवलप करें। पर्सनल स्किल्स तो फिर उस पर मेरी पर्सनैलिटी तो शाइन नहीं करेगी। तो हमें उम्मीद है ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं, पब्लिक सेक्टर पे अच्छा काम हो रहा है। अभी CA मुराद अली शाह साहब ने और बिलावल अली भुट्टो ने भी इस चीज़ पे एक मीटिंग कॉल की थी
सारे सेक्रेटरीज को बुलाया हुआ था, चीफ सेक्रेटरी और सारे डिप्टी कमिश्नर, कराची के कमिश्नर था। उसमें उन्होंने बिलावल साहब का भी यही विजन था कि जिस तरह मतलब एक ऑफिसर है वो अपनी टाइमली प्रमोशन होता रहता है उसका ना, हालांकि उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती, पब्लिक क्राई होती है, उसको कहीं पे भी पोस्ट किया जाता है वहाँ पे क्राई आती है कि ही इज नॉट डिलीवरिंग, फिर भी उसका प्रमोशन हो जाता है। तो उन्होंने डॉक्टर इशरत को रेफरेंस बनाते हुए यही कहा है कि अभी प्रमोशन परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए, और उस पर बहुत सारे लोग मुत्तफिक हैं, इस पे काम हो रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी इस चीज़ पे काम होगा। हम जैसे लोग तो चाहते हैं कि भाई परफॉर्मेंस बेस्ड हो, ताकि हम अपने टाइम से पहले ही प्रमोशन ले लें, तो हमें टाइम का भी वेट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वी वांट टू सर्व, हमें सर्व करने का है ना। तो इस चीज़ को जैसे चेंज करेंगे तो होपफुली पब्लिक सेक्टर भी हमारा उसी तरह एक अच्छी परफॉर्मेंस होगी, एक अच्छा ब्यूरोक्रेट जिसके पास कोई बंदा आएगा वो उससे भी उस तरह से बात करेगा, उसी तरह से उसको वैल्यू देगा जिस तरह हम कॉर्पोरेट सेक्टर में देते थे। ऑफ कोर्स सर, दैट्स वंडरफुल। और माशाल्लाह जहां तक परफॉर्मेंस की बात की तो टारगेट सेटिंग में तो आई एम श्योर कि बिलावल साहब एंड चीफ मिनिस्टर साहब इज अ वंडरफुल मैन, वो टारगेट सेटिंग बहुत अच्छी करते हैं एंड वी डू होप कि कुछ अच्छे से टारगेट्स आपको भी दे देंगे। सो मुजीब साहब, कैन यू हियर मी? मुजीब साहब, Yes, सर ये आपने नसीम साहब को सुना, उन्होंने बड़ा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन भी किया। यही मोरलेस हम देख रहे होते हैं कि कल्चर समाओ एक स्टूडेंट का भी माइंड सेट होता है, स्टूडेंट का माइंड सेट जो परसेप्शन है, इट मे बी यू मे डिसएग्री विद इट, कि स्टूडेंट जब किसी भी एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में जाता है वहां पे एक प्रेशर सिचुएशन होती है, ही ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द मार्क्स एंड ऑल, कि वो कहता है किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं, यहाँ से डिग्री लूं, क्वालिफाई हो जाऊं, एंड देन ही विल बी स्टार्टिंग डूइंग समथिंग यू नो फॉर हिज ओन पर्सनैलिटी और पर्सनल डेवलपमेंट। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र भी किया, जिस तरह हमारे नसीम साहब ने कहा, during your academics you always focus to qualify your degree, but you are less likely to enjoy yourself, groom yourself. So is it happening the same in the institution or academia, sir? वैसे generally जो आप कह रहे हैं, it is thought, it is perceived, and it is acted like it. But in the context of Sakhar IBA University, it does not happen. All the things are performance-based. We are taught like this as the students. We are taught like this as staff. We are taught like this if we are a faculty. So from 360 angles, you will see a merit, quality, and excellence in Sakhar IBA University. Yes, our all assignments, our all performance, and all the things are, based on the merit, the positive communication, positive values, overall positive image building, and all the good things that can attract us and that can be attracted by us. So generally, the things are very good and clear at Sakhar IBA University. And if I talk being a student, like in the student perspective, all the things that we produce are based on the quality. Even if we get more time to submit assignment, but the quality is never compromised. At Sakhar IBA University, either is the perspective of a student, teacher. So maybe the things are like this in other areas, but Sakhar IBA University has a tremendous environment to ensure and deliver quality at all levels. So this is a response from my side. Mansoor sir. Okay, ji Oshna, are you listening me? Yes, I'm listening to you. Oshna, you being a corporate manager, dealing with the different corporate sectors and the universities altogether, all right? So of course you have a different purposes of the association as well. So आपने कभी एसोसिएशन में इन चीजों को प्रोपोगेट या प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है? बिकॉज आई मीन academics or academia is a input source for the industry. So आपने कभी have you ever tried in your own capacity to build the bridge between the corporate sector and the academia and let the academia know what is the essential requirement of the industry, what do they actually looking for in the graduates?
Well, I think on a personal capacity or in terms of Management Association of Pakistan, we do have association with the different organizations. जैसे IB हमारा एक member है and LUMS we have as a member, IOBM, Zabist are a member, but I think the bridging is lacking all over. जब हम कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं तो वो ऑफ कोर्स hiring is there, job fairs होते हैं, they go and get the part students. लेकिन जब हम स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट की बात हो रही होती है तो वहां पे इंडस्ट्री एंड द एकेडेमिया हैज अ फार डिस्टेंस. वो ये नहीं रियलाइज कर पाते कि हम जो पढ़ा रहे हैं या जो बच्चे आगे जाएंगे उनमें कौन कौन सी स्किल्स एज एन ग्राउंड फ्लोर पे रिक्वायर्ड हैं जब वो कॉर्पोरेट में एंटर होंगे. तो वो गैप आई थिंक हमारे ओवरऑल सोसाइटी में मिसिंग है. कंपनीज आर फोकसिंग ऑन देयर रेवेन्यूज और ऑफ कोर्स देयर प्रॉफिट मेकिंग और अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर रही हैं. जब वो बात करते हैं कि बच्चे को इस किसी भी स्टूडेंट को ऑन बोर्ड लेके आना है तो उसकी MTO की ट्रेनिंग्स होती हैं और उनको अपने लिहाज से जो है वो उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं. बट एकेडमिक्स मेरा ये ख्याल है इनफैक्ट होना भी इसी तरह चाहिए कि जब स्टूडेंट किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में आता है तो उसकी इतनी डेवलपमेंट होनी चाहिए या हो चुकी होनी चाहिए कि वो उस अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सके. हम बात तो जरूर करते हैं, सारी जो हम बातें करें बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इनकी एप्लीकेशन नहीं हो रही है कहीं पे भी. And in a personal capacity is also missing, like in on if I say कि Management Association of Pakistan की भी connectivity जरूर है, लेकिन in terms of benefits, providing trainings and other stuff, but जहाँ पे हम students की बात करते हैं वहाँ पे we are lacking. As a whole society and the whole corporate industry, we are lacking in that. तो companies एक of course आप KSB और यूसुफ आपको दाऊद ग्रुप का पता होगा. Angro is now working on it. They have formed their learning development center जहाँ पे वो KSBL के अंदर ही उन्होंने अपना एक development center बनाया है. and वहाँ पे जो हुसैन दाऊद साहब के जितने भी फर्दर उनके साथ जो काम कर रहे हैं दे आर लीडिंग दोस डिपार्टमेंट्स और वहां पे बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर काम होता है. एंड आई थिंक ये चीज हमारे तमाम इदारों को और इंस्टीट्यूशंस को करनी चाहिए जिसमें वो एक ब्रिज बनाए, जिसमें वो स्किल्स की बात की जाए जो कॉर्पोरेट रियलिटीज एंड ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर बेस्ड है. जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री में जाने की तो दे आर कम्युनिकेशन स्किल्स, of course there are personal development skills, there are working styles जो आप बुकिश आपने सीख लिया, it's not applicable actually. हम सेल्स मार्केटिंग पढ़ के या शहजाद साहब जानते होंगे HR जितना उन्होंने पढ़ा है जब उसका अप्लाई करते हैं तो it's totally different. You deal with आपको बार्गेनिंग, आपको नेगोशिएशन करनी पड़ती है अपनी चीजों में, which skill these skills lack in our students. तो वो मुझे लगता है कि हमें आप शायद ये बात से सहमत करेंगे कि जब स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर्स में चला जाता है तो उसकी इंटरेक्शन रादर देन कि वो थीसिस के ऊपर काम करे, केपस्टोन्स के ऊपर काम करे, he should go in the industry, he should go and learn to the industry practices कि वहां पे हम क्या उनको जरूरत है. और रादर देन कि हम यहाँ अच्छी बात है हम इन फोरम्स के ऊपर ही बैठ के बात करते हैं, ये चीजें इंस्टीट्यूशंस में लेके जानी चाहिए कि हम उन स्टूडेंट्स को ये बताएं कि ओके जो आप लर्न कर रहे हैं, जो आप स्टडी कर रहे हैं, दैट इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज अ नीड. आपको अपनी डिग्री क्लियर करने के लिए जरूर चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए फॉर फर्दर ग्रोथ यू नीड टू अडॉप्ट डिफरेंट स्किल्स व्हिच विल हेल्प यू टू ग्रो फर्दर. आप एजुकेशन लेके, स्किल्स लेके, गोल्ड मेडल होके भी आप चले जाएं, लेकिन अगर आपके पास पर्सनल डेवलपमेंट की, हम सिर्फ एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, ये स्किल अगर आपके पास नहीं है तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट केपेबल इनफ टू मूव फर्दर. आप एक अच्छी पोजीशन नहीं ले सकते. एंड दैट इज व्हाई वी सी अ लॉट ऑफ कंपटीशन. माशाल्लाह से जो IBA एज वन ऑफ द बिग यूनिवर्सिटी जहाँ पे लोग people go and learn a lot. जब हम IBA को we have different institutions in Karachi, हर बच्चा IBA नहीं जा सकता. तो जो institutions किसी और institution में पढ़ रहे हैं उनको लाजिम और जरूरी है कि वो अपनी skills के ऊपर काम करें. अगर IBA आज ये बात कर रहा है तो other institutions should also talk about it. और वो इस तरह का एक network develop करें जैसे हम हैं.
वी शुड कम टू योर यूनिवर्सिटीज, वी शुड, सिजाद साहब हैं, नसीम साहब हैं, इनको इंडस्ट्रीज के अंदर जाके, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाके ये बात कम्युनिकेट करनी बहुत जरूरी है। जो हमारे पास मैंने अपने खुद इंटरव्यूज कंडक्ट करती हूँ, फ्रेश ग्रेड्स आते हैं, एंड आई रियली फील कि बच्चे माशाल्लाह से इतनी अच्छी जीपीएस लेके आ रहे हैं, बट दे लैक कॉन्फिडेंस, दे लैक देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड जाहिर सी बात है, एक इदारे को एक अच्छा रिसोर्स चाहिए होता है, दे सी देयर बेनिफिट। आप भी अगर आप किसी अच्छी मल्टीनेशनल में चले जाएं तो दे डिमांड यूनिवर्सिटी, उनको एक नेम टैग चाहिए होता है साथ में। व्हाई? बिकॉज दे नो कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ लेवल हद तक एक ग्रूमिंग हो रही है। तो वो दिस नीड्स टू बी केटर्ड एट अ लार्ज स्केल। इदारों को भी चाहिए कि वो, इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि वो कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करें, और इदारों को स्पेशली चाहिए जो हमारे पास इधर सीनियर मौजूद हैं, वो जाके आगे फोरम्स बात करें और बच्चों की ग्रूमिंग कराएं। All So right. overall, it's missing, and I think it's a very large area. We have to work together on this. बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हम पूछेंगे जरा शहजाद साहब से, काफी चीजें मिसिंग हो गई हैं। शहजाद साहब, एक्चुअली माशाल्लाह यू आर यू नो वर्किंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, जहाँ पे जाहिर है मैनेजमेंट प्लस उसके साथ लेबर, क्योंकि सिंस इट इज अ लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, तो मेजर जो चंक ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो जाहिर है आपका ब्लू कॉलर या लेबर वर्कफोर्स का होता है। So it is also observed, sir, in a manufacturing area कि ज्यादातर जो डेवलपमेंट एरिया है, लाइक पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी ग्रोथ है, वो ज्यादातर कंसंट्रेटेड होता है या फोकस होता है मैनेजमेंट साइड पे। सो डू यू बिलीव के जो हमारे लेबर इंटेंसिव या ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं उनके लिए इसकी जरूरत नहीं है, या ये एक ही ये पर्सनल डेवलपमेंट ऐसी चीजें जो मैनेजमेंट है या डिसीजन मेकर्स जो बैठे हैं उनके लिए ही जरूरत है? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, सर? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जो आपने कहा। पर्सनल डेवलपमेंट का ताल्लुक किसी खास स्ट्रेटा से नहीं है। देखें, मैं आपकी सवाल की तरफ भी आता हूँ और उसके साथ जैसे मिस उष्णा ने अभी कमेंट दिया, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कहना चाहूँगा फ्रॉम द ऑन बिहाफ ऑफ सेल्फ फार्मास्यूटिकल। मेरा बड़ा इंटरेस्ट है इस साइड पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, बिकॉज आई वर्क ऑन दिस माई साइड ऑल्सो, बिकॉज आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट। So I really brush myself. I really give a tight ragda to myself so that I can come up in something very positive side. मैं पिछले 5 साल से मैं जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल के अंदर जो डोमिनेशन है वो साइंस बैकग्राउंड के लोगों की है। जब साइंस बैकग्राउंड कहते हैं तो उसके अंदर हमारे पास मेडिकल एमबीबीएस, फार्मासिस्ट आर द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्रीज, देयर माइक्रोबायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड दीज आर जितने भी साइंस मेडिसिन साइंसेस के लोग हैं। तो आई बीन कंटिन्यूसली वर्किंग विद कराची बेस्ड जितनी भी फार्मा की जहाँ आपके स्टूडेंट आते हैं। कराची यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द मेन यूनिवर्सिटी है फार्मेसी डिपार्टमेंट में। पिछले 5 साल से आई बीन वर्किंग देयर और मैं वहाँ पे स्किल एनहांसमेंट पे काम कर रहा हूँ विदाउट गिविंग एनी, मेरी कोई कॉर्पोरेट की तरफ से ये नहीं है। दो वी गो देयर, हम वहाँ पे कैंपस हायरिंग भी करते हैं, रिक्रूटमेंट ड्राइव भी करते हैं, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ एक सेशन जरूर करता हूँ जहाँ पे एरिया ऑफ डेवलपमेंट के लिए होती है, बिकॉज इट इज माई पर्सनल ड्राइव। मैं हमदर्द के साथ काम कर रहा हूँ, मैं और भी यूनिवर्सिटी के साथ मैंने काम किया है, मैं आप फेसबुक पे मेरे देखें बहुत सारी चीजें, तो हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और भी इदारे इस पे कर रहे हैं। लेकिन जस्ट बिल्कुल सही कहा सुषमा ने, स्टिल देयर इज अ गैप, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी डिफरेंट है। एजुकेशन वालों की प्रायोरिटी ये है कि जी तालीम दो, डिग्री दो, कोरोना आया हुआ है, जल्द से जल्द कंप्लीट कराओ। कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी नंबर देना, इंश्योर करना, जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है उस पर आरओ चाहिए। तो दोनों की जो डिमांड है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे तायुन ये बात कौन करेगी इंटरवेंशन का, वो प्रायोरिटीज है। प्रायोरिटी क्या है? एकेडमिया को तैयार करना है स्टूडेंट कहाँ के लिए? कॉर्पोरेट के लिए। डेफिनेटली वो अपने घर पे तो नहीं रखेगी, और कॉर्पोरेट को क्या चाहिए? अच्छे स्टूडेंट चाहिए। तो जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे, जब तक ये दोनों एक पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, उस नीड को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, वो सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो ऑन अ पर्सनल नोट आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग, और जैसे मैं आपसे भी कह रहा था कि आप बताइए, इंशाल्लाह हम आपके पास भी आ जाएंगे। अब आते हैं आपके सवाल पे। सर देखें, अगेन यस, ब्लू कॉलर या लेबर साइड पे डेफिनेटली उनका जो काम है उसका स्कोप जो है वो डेली टू डेली बेस पे फोकस है ना, कि आज जो है वो अगर चले लेट से कोई बैच निकलना है, कोई नंबर ऑफ यूनिट निकलना है, एक्स यूनिट निकलना है, तो उनका फोकस उसी पे। डिले हो जाएगा तो जी ओवर टाइम लगा दो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे भी जब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है, जब सिस्टम चेंज होते हैं, तो उनकी भी वहाँ पे डेवलपमेंट कराई जाती है। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटरी सेक्टर इन पाकिस्तान के अंदर है, जहाँ पे गवर्नमेंट का भी बहुत एम्फेसिस है, क्योंकि उसमें इंसानी जान इन्वॉल्व है आपकी मेडिसिन के अंदर, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए भी काम होता है। हाँ, शायद उस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं उस लेवल पे नहीं काम होता है जिस तरह मैनेजमेंट या एक एक टॉप लाइन के लिए या मैनेजमेंट स्टाफ के लिए काम किया जाता है। तो यहाँ पे यस आई एग्री विद यू, शायद कोई डिस्क्रिपेंसी आ सकती है, लेकिन
जहाँ पे नीड है, प्रायोरिटी है, वहाँ पे सर उसको ज़रूर फुलफिल किया जाता है, क्योंकि अगर जब वो फुलफिल नहीं किया जाएगा तो आपकी रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी और फिर आप जो है प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर जब कंप्लायंस नहीं देंगे। तो इस चीज़ का तो बड़ा ख्याल किया जाता हैगा और हम इस पे काम कर रहे हैं। हमने भी बहुत पार्टनरशिप की है डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ, लोगों को जाके ग्रूम किया, बच्चों को अपने लेवल पे जाके काम किया है। और इसमें सिर्फ लेबर नहीं सर, इसमें मैं तो कह रहा हूँ आप डाउन लेवल पे आ जाएँ, स्टूडेंट लेवल पे। स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट कह रहा हूँ, तो मैं कॉलेज के भी स्टूडेंट को कह रहा हूँ, स्कूल के स्टूडेंट को भी कह रहा हूँ। यूनिवर्सिटी वाले तो हैं ही शामिल, वो तो एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। हमें डेवलपमेंट वहाँ पे भी जाके करनी है लोगों की। माइंडसेट पे उनके काम करना है, उनकी स्किल एनहांसमेंट पे काम करना है, वरना उनकी टेक्निकल स्किल्स सारी जो है वो यूजलेस हो जाएंगी अगरचे उनके पास अपने पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं होंगी। बिल्कुल सही है। सर नसीम साहब एक्चुअली माशाल्लाह गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे इदारे जो रिकग्नाइज इदारे हैं जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। आई वांट टू नो कि जो हमारे फार फ्लंग एरियाज में डिप्यूट हो जाते हैं, थर ले लें आप, बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे लोगों के लिए जो बेसिक जरूरियात जिंदगी है, जिसमें खाना पीना जो है वो भी नहीं पहुंच पाता है, तो ये ट्रेनिंग कैसे आप पहुंचाते हैं वहां पे? हाउ यू, या उनको छोड़ देते हैं, चल के हवाले, मतलब अल्लाह के आसरे चलते रहें? व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी? आई मीन व्हाट इज द कल्चर ओवर देयर अबाउट इट? असल में प्रॉब्लम इज दैट कि हर जगह पे इस तरह के इंस्टीट्यूट नहीं बन सकते। जब जहाँ तक हमारी सिंध गवर्नमेंट की बात है, तो हमारे पास जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का प्रोफेशनल लेवल पे, वो एक ही है जो कराची में नीपा पे लोकेट करता है। अब फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर जब हम आते हैं तो उनकी सिर्फ एक ही एकेडमी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एकेडमी कासा, जहाँ पे सीएसएस के लाहौर में वाल्टन एकेडमी है, जहाँ पे सीएसएस के मतलब सीएसपी को ट्रेन किया जाता है। जहाँ तक बात आ गई कि हम रिमोट एरिया से, जैसे हमारे पास थर है, दीपलो है, मीरपुर खास है, बदीन डिस्ट्रिक्ट है, और हम आगे कंदरकोट तक चले जाएं, बॉर्डर एरियाज पे चले जाएं, वहाँ पे जो हमारे ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं, वहाँ तो डेफिनेटली हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये ट्रेनिंग का सिस्टम इस तरह से होता है कि देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स वर्किंग अंडर गवर्नमेंट। तो उनका ये होता है कि जब एक एकेडमिक या एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग बनाई जाती है, एक शेड्यूल की जाती है, तो सारे डिपार्टमेंट्स को वो लेटर चला जाता है कि आप अपने बंदे नॉमिनेट करें जो आके वहाँ पे ट्रेनिंग लें। तो उसमें एक ही इदारा है कराची में ही है, जिसको नॉमिनेट करता है जो जो इदारा अपना बॉस, वो सिर्फ वहीं पे आते हैं, कराची में आके ही उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। बाकी कहीं और पे ये सेटअप नहीं है। Because of probably lack of resources or lack of coordination between the institution, क्योंकि एनजीओज तो काफी हैं ऐसी जो आपको फैसिलिटेट कर सकती हैं। probably there is a lack of communication or coordination. This is my opinion. I don't know about your take on this. हाँ मुजीब साहब, मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा था कि we are talking about the personal development area. माशाल्लाह you are working as an assistant director community colleges. I mean this is one of the greatest initiative, I would say. So how do you work in the local community for the welfare of the local community or a personal development of a local community besides the students that you are teaching in your community colleges? Sir, honestly speaking, we don't have so many programs for the community specifically, because the model of community colleges is not as taught in the European countries like America and others. But on smaller scale, we promote support and take support from the communities. Let me give you some examples. Like we organize some kind of awareness sessions, mostly either quarterly, bi-monthly, or annually. We involve parents. So in this way, we take help from them. This is one of the way. On other hand, we invite parents on annual days. So this is another way, and we go for some communities like charity funds community. We have particular names, so we support the communities that are nearby on having some aid and like this, especially in the emergency times. So this is one of the way. And aside from this, we have a particular community support in the form of PTM, parent-teacher meetings. So these are some of the ways that we are interacting, supporting and getting support from the community and parents. Aside from this, we do not have a particular mechanism, but we are thinking
to enhance these same kinds of activities in future at a broader level. Okay, okay. Now we have a very important question to all participants. I will definitely seek a one by one answer from starting from the Shehzad Khan. Shehzad साहब, ये हमने काफी बातें कर ली कि like we have discussed very much in detail. हमने आइडेंटिफाई कर ली कौन सी एरियाज हैं, कौन सी स्किल्स हैं, वो सब हमने कर लिया. When it come to the application, नॉर्मली स्टूडेंट पर्सपेक्टिव हो गया या एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव हो गया, लाइक इदारे आपको ट्रेनिंग में डिप्यूट करते हैं तभी आप जाते हैं, probably because you might be required to show your credential for the sake of growth in terms of promotion and all. So सर, मैं एक्चुअली जो मेरा सवाल है, इंसान अगर वो करना चाहे एज एन प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना चाह रहे, से फॉर इंस्टेंस मी एज एन लेमैन पर्सन, मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को बनाना शुरू करूं, how should I get started in it? मतलब what would you say कि what is 1 2 3 like that? मतलब मैं वन बाय वन रिक्वेस्ट करूंगा पैनलिस्ट से. देखिए, एक चीज तो सर बड़ी ऑब्वियस है इस डिस्कशन से, बड़ी जो काम की बात हमें एक पता थी सबको, लेकिन अब वो एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है. नंबर एक, गवर्नमेंट साइड से वी डोंट हैव एनी सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल. अगेन हालात आप देख लें कैसे हैं, आपकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, आपकी इन्फ्लेशन रेट कहाँ जा रहा है, जहाँ पे लोगों के पास अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने का टाइम ना हो, तो आप फिर कहाँ ये पर्सनल डेवलपमेंट और इतनी बड़ी बड़ी किताबी आप बातें कर रहेंगे, इट्स यूजलेस. लेकिन हमें करना भी है, अगर हम नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे. तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, प्रायोरिटीज, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज क्या. आई वर्क इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, और मैंने वहाँ पे जब काम किया तो मुझे आइडिया हो मैं यहाँ पे नहीं चल सकता, और मैंने अपनी तालीम जारी रखी, एंड वंस आई डन विद स्टडी मैं वहाँ से काम छोड़ के भाग गया, क्योंकि जो स्किल सेट में डेवलप करना चाहता था, जहां मैं ग्रो करना चाहता था, वो मैं वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता था सर. मुझे पता था इसकी एप्लीकेशन है नहीं 0%. सो दैट्स व्हाई आई एम इनटू द कमर्शियल सेक्टर, एंड आई एम इधर भी यहाँ पे बड़ा टफ टाइम, लेकिन आई एम एंजॉयिंग बिकॉज इस टफ टाइम इज एनहांसिंग माय स्किल सेट. अब जो आपका सवाल है सर, ये सारी बातें हो गई, सही है, लेट द डेड पास्ट बी बरीड, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज नेक्स्ट, हमें उस पर फोकस करना है. सर देखें, सबसे पहले तो चाहे मैं अपने एग्जांपल लूँ, हम सब पे एग्जांपल अगर से अप्लाई करें, हमें बात समझ लेनी चाहिए, इफ वी आर नॉट वर्किंग ऑन आवरसेल्फ, इफ वी आर नॉट वर्किंग ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, तो जिस तरह अ प्लांट नीड अ वाटर टू ग्रो, सर वी नीड आवर डेवलपमेंट टू ग्रो. अगर आज हम पौधे को पानी नहीं देंगे, वो ग्रो नहीं करेगा. सिमिलरली आज मंसूर साहब या शहजाद साहब अपना स्किल सेट, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करेंगे, तो हम भी डेड हो जाएंगे. डेड से मतलब फिजिकली नहीं, बट फ्रॉम हेयर मेंटली आपको कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, और लोग आगे निकल जाएंगे, आप छोटे रह जाएंगे, और फिर आप सफर करेंगे, फिर आप डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे. तो सर इट इज अ वेरी राइट टाइम टू गिव वाटर टू आवरसेल्फ. सबसे पहले जो मैं समझता हूँ इसमें पहला स्टेप है वो ये है, नंबर एक, हम अपने गोल्स आइडेंटिफाई करें कि वेयर आई, या हमारा जो स्टूडेंट है वो अपने आप को बोले कि जी लेट्स से वेयर मंसूर वांट टू गो, उसके गोल क्या है, व्हाट आर द 2-3 की गोल्स. और उसके बाद अगर जब आप कहते हैं कि जी मैंने चेयरमैन बनना है IBA का, आप कहते हैं मुझे डायरेक्टर बनना है, आपके 3-4 गोल निकल के आ गए, आपने कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना है. नाउ उनमें से उन 4-5 गोल में से सर प्रायोरिटाइज करें कि व्हाट आर द 3 टॉप माय गोल्स जिस पे मुझे काम करना है. जब आपके पास 2 या 3 की गोल निकल आएंगे, नाउ यू हैव टू मेक अ प्लान कि यहाँ तक अचीव करने के लिए मुझे करना क्या है. क्या मुझे अपना एजुकेशन लेवल बढ़ाना है, मुझे एमफिल करना है, मुझे PhD करना है, या लेट से मुझे कोई बाहर से सर्टिफिकेशन करनी है, मुझे इस इदारे से सर्टिफिकेशन करनी है. आप उसका प्लान बनाएंगे, और आपका वो ईयर बेस्ड प्लान होगा, फिर आप उस पर काम करेंगे. अब देखिए उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, आपको लाइक माइंडेड लोगों में बैठना पड़ेगा. अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पढ़े लिखे अच्छे लोगों में बैठेंगे, आप कोई मजदूर के साथ नहीं बैठेंगे. यस, उसके साथ भी बैठे, मैं ये नहीं कह रहा उसके साथ ना बैठे, लेकिन मैं आपके गोल्स से लिंक कर रहा हूँ. Sit with the like-minded people who can give you suggestion. और सर नंबर एक, take the feedback from the expert. जब आप लाइक माइंडेड लोगों में बैठते हैं तो फिर आपको पता लगता है आप में कमी क्या है, और इस तरह आप अपनी आइडेंटिफाई करेंगे गैप को जो लैग कर रहा है आपके गोल के अचीवमेंट में. और वंस यू आइडेंटिफाइड दैट गैप, देन फिल दिस गैप. अब वो किसने करना है, करना आपने सर. इन तमाम बातों में सर जो हमारे डिस्कशन में जो 2-3 बातें निकल के आ रही हैं, अगर मैं उनको कहूँ, नंबर एक, गवर्नमेंट हो या इंडिविजुअल शहजाद हो, प्रायोरिटी की करनी पता हमें करना क्या है. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है मोटिवेशन. सर जिसको बहुत ही हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में इस वर्ड को बहुत ही बुरे तरीके से यूज किया जाता है कि जी ट्रेनिंग करा दो मोटिवेशन हो जाएगी. मैं इसके खिलाफ हूँ. सर मोटिवेशन जो होती है ना वो अंदर से आती है, विद इन वन सेल्फ, इट्स अ फायर इन योर बेली. तो सर उसके लिए आपको चाहिए मोटिवेशन. आपको पता है कि लेट्स से आप क्या ये एरिया ऑफ वीक है, लेकिन आप जानते बूझते भी उसको गैप को फिल नहीं कर रहे. वजह इसकी क्या है
यू लैक इन मोटिवेशन। तो ये है कुछ 3-4 स्टेप, मोटिवेट हो, आप आइडेंटिफाई करें और फिर आप अपने गोल्स पे काम करें और फीडबैक लें एक्सपर्टीज लोगों से, इंशाल्लाह आप इंप्रूव करेंगे। तो दिस इज आई थिंक 5 और 6 स्टेप है इसके अंदर। मैं एक बड़ी अच्छी किताब है कोचिंग पे पढ़ रहा था, उसमें ग्रो मॉडल को डिफाइन किया उन्होंने, जॉन वाइटमोर समथिंग उनका नाम है राइटर का। तो उसमें बड़ा अच्छा पढ़ रहा था, उसमें लिखा था डिफरेंट जो राइटर है, जो कोच है, एक्सपर्ट, उन्होंने डिफरेंट कोचेस को जब स्टडी किया तो उन्होंने बताया, जो एक्सपर्ट कोच हैं वो ही कहते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस कोच हैं, दे स्पेंड एटलीस्ट 30 मिनट इन अ डे फॉर देयर पर्सनल डेवलपमेंट। यू सी दीज आर द एक्सपर्टीज। और डेफिनेटली वो गौरव की बात कर रहा है, वो हमारी बात नहीं कर रहा है लोकल्स की। यस, हम में भी होंगे बहुत सारे लोग, हमारी सोसाइटी में बड़े जबरदस्त अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस गोरे ने जो किताब लिखी है। तो 30 मिनट्स, अब आप और मैं सोचें हम कितने टाइम देते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए। आप फ्राइडे का डॉन पढ़ेंगे तो उसमें जो लेटर्स टू एडिटर आता है वहाँ पे फ्राइडे का है, जिसमें उन्होंने दिया है कि स्कूल और जो इंस्टीट्यूशन में लाइब्रेरीज का क्या हाल है। आप वो पढ़ें, आपकी आंखें खुल जाएंगी। और फ्यू मंथ्स बैक, आई थिंक जनवरी के डॉन में मैं शायद पढ़ रहा था कि हमारे यहाँ जो सर्वे हुआ है किताबों पे, हमारे यहाँ ओनली 8 to 9% रीडिंग हैबिट है। अब आप बताएं, हमारी प्रायोरिटीज ये हैं, फिर आप कहते हैं आप चैंपियन बनेंगे एशिया के, हम कैसे बनेंगे जब तक पढ़ेंगे नहीं? हमारी प्रायोरिटीज भी कुछ और है सर, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर पे हो चाहे इंडिविजुअल सेक्टर पे। जब आप अपने आप को एनहांस ही नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आपकी क्या डेवलपमेंट होगी? तो आई थिंक हमें पढ़ना चाहिए, हमें डिस्कस करना चाहिए, हमें लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठना चाहिए और इंटरवेंशन अपने आप से स्टार्ट करें। देखें, जो अभी नसीम साहब ने बात की थी ना सर, वो ACR फेल हो जाती है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है? अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर। आज मैं अपना काम नहीं करूंगा तो मेरे बॉस मुझे 1 महीना लगेगा वहां से बाहर जाने में। सर, आई एम अकाउंटेबल फॉर माई ऑब्जेक्टिव्स। इफ आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर एनीवन, सो आई डोंट वर्क। मेरी मर्जी मैं 10 बजे आऊँ या 11 बजे आऊँ। तो दिस इज हाउ, यहाँ पे वो वैल्यू सिस्टम है जो नसीम साहब ने बात की थी, पढ़ा लिखा जाहिल सर, ये वैल्यू सिस्टम डिराइव करेगा। देखिए, मैंने आपसे कहा था आज मेरे घर पे काम हो रहा है, आपसे मैंने कमिटमेंट किया था 2 वीक बैक। आज मैं कहीं और आया हूँ, मैंने यहाँ पे आके सेटिंग की, सब कुछ किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं करना। दिस इज वॉट मैंने आपसे कमिटमेंट किया, वैल्यू थी, यहाँ पहुंचना था, एंड आई एम मोटिवेटेड। मैं पहुंचूं यहाँ पे कि जी मेरा घर छोड़ के यहाँ पहुंचा हूं मैं। तो दिस इज हाउ आई एम फुलफिल माई कमिटमेंट। एक मेरा वैल्यू थी, मेरा खुद से कमिटमेंट था, यहाँ पहुंचना था। तो आई थिंक दिस इज हाउ वी कैन वर्क। हम आइडेंटिफाई करें अपने गोल को, प्रायोरिटीज सेट करें, स्किल गैप आइडेंटिफाई करें। और मैं सिर्फ 2 पॉइंट यहाँ पे देना चाहूंगा, ये तो जर्नल है स्पेसिफिक, हम जो साइकोलॉजी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, तो देयर आर द 2 टूल्स। शॉर्ट एनालिसिस, जो आई थिंक हर स्टूडेंट को और इंडिविजुअल को करना चाहिए, अपना शॉर्ट एनालिसिस करें विद करियर रिलेटेड। और एक दूसरा एनालिसिस जो होता है जिसको हम कहते हैं पेस्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस का ताल्लुक होता है आपकी इन से, आपकी पर्सनैलिटी से, और जो पेस्ट होता है वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर को असेस करता है। तो दिस इज हाउ द टूल वी आर यूजिंग फॉर आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ, एंड और फिर हम अपनी डेवलपमेंट पे अच्छे से काम कर सकते हैं सर। All right, Ushna, your take on this. No, you may please. Ushna, your take on this. शहजाद ने काफी सारी चीजें इसमें कवर कर दी हैं, बट स्टिल आई थिंक व्हेन वी हैव डिजाइंड आवर आइडियोलॉजी, यहाँ पे अपने विजन बना लिया है, तो उसके ऊपर वी हैव टू वॉक थ्रू दैट। एंड वॉक थ्रू दैट का प्रोसेस ये है कि आप पढ़ें, रीड। आई थिंक दिस इज समथिंग विच ऑल the aspiring leaders, managers, students should do. हम किताबें जरूर पढ़ते हैं, but we lack in the reading skills. So reading is one of the things which I recommend, and that is आप चाहे एक सफ़ा पढ़ें, but पढ़ें जरूर, आर्टिकल्स पढ़ें। आपसे पढ़ा नहीं जाता, आप TED Talks देखें, small videos which help you to groom yourself. At least आपकी knowledge में इजाफा होगा उससे। And then आप अपनी हैबिट्स चेंज करें। इफ यू आर हैबिचुअल ऑफ गेटिंग अप लेट, वर्क ऑन दोज हैबिट्स। इट्स नॉट बैड कि अगर आपकी यू नो वी ऑल हैव सम काइंड ऑफ हैबिट जो हम अपने घर से, अपने माशरे से लेके चल रहे होते हैं अपने साथ। हम जिस माहौल में रह रहे होते हैं, हमारे साथ वो चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, इट्स नथिंग बैड इन दैट। लेकिन जो आप कहीं पे पहुंचना चाह रहे हैं, आपकी एक आइडियोलॉजी है, आपका एक विजन है, आपने अपने गोल्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, सो यू नीड टू बिल्ड दोज हैबिट्स विच विल एनहांस योर पर्सनालिटी। आप अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे होते हैं, आप कुछ बातें इस तरह की कर रहे होते हैं, आप लेट उठने के आदी हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज लूप होल्स जहाँ पे आपको वर्क करने की जरूरत है, जहाँ पे आपको अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है। सो इट्स नॉट बैड अगर आपके अंदर कुछ खामियां हैं, हर इंसान के अंदर होती हैं। इफ इट इज बैड इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैट। अगर आप कहीं पहुंचना चाह रहे हैं,
So I think that is something which everyone should do to self-aware. अपने आप को जाने, अपना खुद एनालिसिस करने से शहजाद ने बात करी SWOT की. So that is one thing which all of us should do कि आपके अंदर क्या strengths हैं, आपके strengths क्या आपके अंदर हैं, लेकिन क्या आप उनको यूटिलाइज कर रहे हैं अपने करिकुलम में, अपने आगे ग्रोथ के लिए. आपके जो वीकनेसेस हैं उसको अगर हैं तो इट्स ओके, सबके अंदर होती हैं. देयर इज NLP प्रैक्टिशनर जो कहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल 50 इयर्स की एज में आके अब आप कुछ नहीं सीख सकते, जो आप हो गया वो अब बन गए. इट्स नॉट लाइक दैट. आपका ब्रेन हर चीज को ट्यून करने के लिए हर वक्त रेडी है. जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपने माइंड को ट्यून कर सकते हैं. एंड दिस ऑल आर दी आई एम सॉरी देयर इज अ डिस्टॉर्शन, माय पैरेट इज देयर. So that is something which all needs to do. आपका ब्रेन काम करता है. आप it's young till you are young. जब तक आप जिंदा हैं, your brain is there. It's young. And आप उसको सिखाने के लिए, कोई भी हैबिट बनाने के लिए, you need 40 days only. You have to work on that, and inshallah आपका goal है, you will achieve that. So I think reading is must, and working on your habits and getting your self-awareness is very important. And I hope your parent is also agreeing with your point of view. Let's see. All right. How about you, sir? Naseem Saab, any your take on this, sir, that we are discussing about? Naseem सर, Saab. मंसूर साहब, एक्चुअली शहजाद साहब ने और मैडम उष्णा ने इतना डिटेल बता दिया है, अब मेरे लिए कोई गुंजाइश बचती नहीं. पर मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा. पर्सनल डेवलपमेंट एक होती है जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमें काम आएगी. उन पे उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, कोई गुंजाइश बचती नहीं है मैं उसमें कोई चीज़ की ऐड करूँ. मैं पर्सनल डेवलपमेंट फॉर पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ तो हमारी एक लिमिटेड लाइफ होती है. वहाँ पे हम फिर भी कुछ ना कुछ मुहज़्ज़िब होते हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास बंदा आया हुआ है, ही कैन क्राई अगेंस्ट अस. पर जब हम पर्सनल लाइफ में होते हैं, अपार्ट फ्रॉम आवर प्रोफेशनल लाइफ, वहाँ पे हम बिल्कुल हिटलर होते हैं. कोई चीज़ हम सुनने के लिए, कोई चीज़ हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होते हैं. आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, कोई गाड़ी आपके सामने आ गई है, लेट फॉर सपोज, किसी को रास्ता नहीं देते हैं, किसी का रास्ता रोक लेते हैं, किसी से मिसबिहेव करते हैं. तो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट उस पर भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. उसके लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है. वो कब सीखनी है? जब से आप होश संभाल लें. उसको सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है. मैं सिंपली एक ही बात कहता हूँ सारे दोस्तों को. कहते हैं कि भाई हम इस चीज़ को कैसे समझें. मैं कहता हूँ मेरे भाई, आप रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, घर में बैठे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं, होटल पे बैठे हुए, जो चीज़ आप देख रहे हैं आपको बुरी लग रही है, किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया, किसी ने आपको रास्ता नहीं दिया, किसी ने आपका रास्ता काटा, जो चीज़ आपको बुरी लगती है, एटलीस्ट वो चीज़ तो आप अपने से ख़त्म करें. उसी पे आप डेवलप हो जाएंगे, उसी पे एक आप अच्छे इंसान हो जाएंगे. कुछ भी ना करें, कोई डेवलपमेंट, कोई प्रैक्टिस ना करें, जो चीज़ देख रहे हैं आपके साथ गलत हुई है, एटलीस्ट वो काम आप दूसरे के साथ ना करें. Then you will be definitely a good human being. That's wonderful. It's a concept of self accountability. Ji, exactly. Ji, Mujib Saab, on your side, sir. Actually, I have my contribution was mostly related to community colleges and Sakkaraji University. But I was, since beginning, I was thinking there are many problems in our society. Like there is nothing final. What is personal development and what are personal development skills, which is not finalized because there's a lot of literature on personal development. Then I thought, why not to reduce these skills into main 3 skills? I was thinking like this, so that we can help the youngsters to choose the most suitable skills, personal development skills in today's context and era. So I chose 3 skills which are most important for professional and personal development. And this is my opinion, what I deduced from my reading and my experience. Like the most important skill for personal and professional development is critical thinking, how and why. Like my colleagues were suggesting to develop reading habit and reading skills. I was thinking Now moving towards conclusion now.
So, mashallah, that's wonderful discussion we had today, and we have couple of people, participating, and they are very much excited to ask a question. Actually, unfortunately, I'm short of time, so we won't be accommodate the question answer session today. So, anyhow, now in the final comments, I would say, so being a part of industry and the academia, now it's a concluding remarks from your side. So, what a final thing would you suggest to make it happen that our industry can be of any use for the institution? I mean, bridging together on a platform. So what single sentence recommendation for you, what institution should do and what industry should do? Shahzad, from your side. सर आई थिंक मैं इसके अंदर ये कहूँगा, आप स्टूडेंट को ये बताइए नंबर एक कि भाई एजुकेशन 16 साल के बाद ख़त्म नहीं होती है। वो समझते हैं मास्टर्स बैचलर्स हो गया तालीम ख़त्म। पहले तो ये सोच चेंज कर दें सर। लर्निंग पूरी ज़िंदगी है। दूसरा, लर्निंग को कंटिन्यू रखें। एक पॉइंट, एटीट्यूड को अपने पॉजिटिव रखें। वर्क प्लेस पे चैलेंजेस आएंगे, लोग टफ मिलेंगे, हो सकता है आप टफ हो, कीप योर एटीट्यूड पॉजिटिव। आप अपने इमोशंस को मैनेज करें, आप डिसीजन पे फोकस करेंगे। इफ यू आर नॉट मैनेजिंग योरसेल्फ, योर इमोशंस, देन आप अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो आई थिंक ये एकेडमी में काम करना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट बच्चों को सिखाएं, ग्रिट सिखाएं, रेजिलियंस सिखाएं। चैलेंजेस बहुत हैं, मसले आएंगे। अब आपको उसमें अगरचे आप ग्रिट नहीं है आपके अंदर, तो आप फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक दिस इज फ्रॉम द एकेडमिया साइड। और हमारे साइड ये है कि नंबर एक, वी आर वर्किंग ऑन देयर अकोमोडेशन, वी आर वर्किंग ऑन देयर डेवलपमेंट, काम कर रहे हैं, चैलेंजिंग काम है। अच्छे लर्नर मिल जाए ना आपको। मैंने जो खुद ऑब्जर्व किया अपनी टीम के साथ भी, हम भी अपने बॉस को रिपोर्ट करते हैं, जो मैंने बात की, दे वांट पॉजिटिव एटीट्यूड। जब पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो वो टेक्निकल स्किल चीजें बंदे को मैंने देखा सेकंड पे रख देते हैं, जिसके अंदर एटीट्यूड का मसला आता है। तो आई थिंक इस चीज पे हमें काम करना चाहिए। हमें जो है वो इमोशंस को अपने साइड में रखना चाहिए। दो ये करना बहुत मुश्किल काम है, और ये वो लोग करेंगे नंबर एक जो अपने आप को जानेंगे। जो ने भी कहा था कि सेल्फ अवेयरनेस जिनके अंदर होगी, ऐसे लोग फिर आगे निकल जाएंगे। All right, Oshna, what happens if we have because a person from Sakhar IB as well? So how would you say कि अगर कल कोई आपको invite कर देंगे, will you bring the industry to the Sakhar as well? Yes, definitely we will, and we will make sure, we will try our best कि हम अपने साथ इंडस्ट्री की एक we as a platform हम एक ब्रिज बनाएं और अपने साथ इदारों को लेके आएं for this grooming of students. और I think जो बात आप कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव आप लेना चाह रहे हैं, जो आपका विजन है, that is very good. जिसमें हमारे स्टूडेंट्स की भी डेवलपमेंट है, और we of course later on they have to go back to those industries. So वो ब्रिज और नेटवर्क अगर हम बना लें, तो I think that is something tremendous and amazing work to be done from the side of institutions and corporates. क्लोजिंग रिमार्क्स में ऑफ कोर्स मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक चीज अपने साथ लाजमी रखनी चाहिए, एटीट्यूड। स्किल्स इज देयर, जैसे अभी बात शुरुआत नहीं करी है, आई विल 100% सेकंड टू हिम। स्किल्स आर देयर। आप अपनी डिग्री लेके जरूर आ गए हैं, आपने गोल्ड मेडल भी ले लिया, बट इफ योर एटीट्यूड इज नॉट पॉजिटिव, इफ यू नॉट हैव द एबिलिटी टू चैलेंज, to work in a challenging environment, I'm sorry, you cannot cope up with the industry. क्योंकि जो आप अपने घर में देख रहे हैं, आपके maybe your family gives you amazing environment, लेकिन work is tough. जब आप काम की बात करते हैं, and if you want to grow yourself, work is tough. You have to make sure कि आप इस challenging task को, challenging work को आगे लेके चलें और उस environment में खुद को train करें, अपने comfort zone से, उस bubble से बाहर निकलें और learn skills which will help you to grow. That's all. All right, नसीम साहब। जी मंसूर साहब, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी जिस तरह MBAs में एक पर्सनल डेवलपमेंट का सब्जेक्ट होता है, इसी तरह हमारी हर किस्म की डिग्री में एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपल्सरी सब्जेक्ट, जिसमें बच्चों को पर्सनल डेवलपमेंट सिखाई जाए। जब तक हम एक मैंडेटरी, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट नहीं लाएंगे अपनी डिग्री में पर्सनल डेवलपमेंट का, तो उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा होता है, वो यूनिवर्सिटी से उसने MBA की, फिर वही उसको किसी इदारे में जाके ट्रेनिंग भी करनी होती है अपनी डिग्री को रिसीव करने के लिए, पर वहाँ पे भी वो सिर्फ वही चीज़ सीख के आता है जो उसकी
मतलब टेक्निकल स्किल्स पे डिपेंड करती है। सॉफ्ट स्किल पे हम उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं कराते हमारी एकेडमी या हमारे इधर, ना ही हमारे पास पाकिस्तान में कोई, मेरी नज़र में शायद हो भी कोई ऐसा बड़ा इदारा जो सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट में सॉफ्ट स्किल्स पे काम करता हो और उसको उस इदारे की असेसमेंट हो, मतलब एक्सेस हो हर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट तक। तो इस तरह से मुमकिन नहीं है। बेहतर यही रहेगा कि हमारी कोर्स रिवाइज हो और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सब्जेक्ट एटलीस्ट यूनिवर्सिटी लेवल के डिग्री के कैंडिडेट्स को हम पढ़ाएं। Okay, that's wonderful. Mujib Saab, your take on this, sir. Yes, I would say there are three main skills in today's era, like critical thinking and empathic skills, and the third is going to be digital competence. ये मैं deduce कर रहा हूँ। Digital competence बहुत बड़ा term है। Empathic means you become social, you lead to right approach, you put your foot into the shoes of others. So ये तीन जो स्किल्स है ये आपको गुड ह्यूमन बीइंग भी बना सकते हैं, राइट अप्रोच भी देंगे एंड विल प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट। एंड दिस इज द मैसेज फ्रॉम मी कि अगर आपको एज अ गुड प्रोफेशनल, एज अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल, स्टूडेंट, टीचर, व्हाटएवर ह्यूमन बीइंग बनना है कि ये तीन स्किल्स चूज करें, इसको जाने कि इसके बारे में कि ये क्या है, देन इस पे काम करें एंड देन adopt these skills, you will have a positive result. This is my opinion. This is from my experience, from my reading. That is all, Mansoor sir, my message. This is my message. Okay, that's wonderful. मैं अब कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, शहजाद खान साहब, उष्णा निहाल साहबा, नसीम साहब एंड मुजीबुर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी दरख्वास्त पे फौरन रिप्लाई किया, रिस्पॉन्ड किया और आपने आज लर्निंग लेजेंड बोर्ड पे एक पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काफी डिटेल इनसाइट दी एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ सेम सॉर्ट ऑफ सेशंस अहेड। और नेचुरली आपका कोऑपरेशन चाहिए होगा बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड द गवर्नमेंट एंड ऑफ कोर्स एकेडमिया। और आज मैंने बड़ा चुन के ये पैनल लिया है। इंशाल्लाह वी विल बी ब्रिजिंग relations all together, all different stakeholders together, ताकि हम आगे चल के स्टूडेंट्स एक कलेक्टिव टैलेंट और पूल को हम डेवलप कर सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग एंड सी यू सून। थैंक यू, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा बात होगी।